آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ، شہباز شریف لندن میں نواز شریف کے مشورے سے کریں گے، وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخر فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن روانہ ہو چکے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے لیے 3 گھنٹے کا وقت طے ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کوئی عمل شروع نہیں ہوا، نہ ایسی کوئی تجویز ہے، اس وقت کوئی پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، اس لیے اس پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے ابھی کوئی عمل شروع نہیں ہوگا، تو جو باتیں کتابوں میں ہیں وہی ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی IMF کے پروگرام اور سیلاب متاثرین کی امداد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان قومی سلامتی اور قومی وجود پر حملہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ نیب قانون میں ترمیم کے تحت نیب ریفرنسز کے ملزمان کے لیے بڑا ریلیف۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی سمیت نیب کے 50 کرپشن ریفرنسز نیب عدالتوں نے واپس کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف USF فنڈ کرپشن واپس۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور اعجاز ہارون کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثے میں مبینہ خود بدھ کا ریفرنس واپس ہو گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اربوں کی کرپشن کے کیسز میں گواہوں کی موت کی تحقیقات ہوں تو پتہ چلے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے بلکہ مروائے گئے ہیں۔ 4 سدہ جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ان کی اچھی بھلی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا۔ حکومت اور ان کے حامیوں پیغام کہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں جیت سکتے، الیکشن جتنی تاخیر ہوگی معیشت اتنی ہی نیچے جائے گی۔ ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، قومی کرکٹ ٹیم کے سٹارز کے خصوصی انٹرویوز، میچ سے پہلے اور میچ کے بعد کی کہانیاں، کیسے بنے سٹارز، کیسے کیا حریف پر وار، کھلاڑیوں کی کہانی، کوچز کی پلاننگ اور بہت کچھ اب ہوگا صرف جیو نیوز پر۔ پاکستان کا سب سے مقبول نیوز چینل جیو نیوز بن گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانٹینٹ میڈیا پارٹنر۔ پاکستان کرکٹ سٹارز کے ایکسکلوزیو انٹرویوز، میچ کے ٹاپ پرفارمنس کے تاثرات اور میچ سے قبل تیاریوں کی خصوصی کوریج، ساتھ ساتھ اس پارٹنرشپ سے اجاگر ہوں گے مستقبل کے کرکٹ سٹارز اور خواتین کرکٹ کو بھی ملے گا فروغ۔ PCB کے مطابق جیو نیوز نے شفاف اور منصفانہ عمل کے تحت ستمبر 2023 تک کے کانٹینٹ میڈیا پارٹنرشپ حقوق حاصل کیے ہیں۔ سیلاب میں گھرے لاکھوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی امداد کی نئی اپیل کر دی، کہا تقریباً 34 لاکھ سیلاب زدہ بچے فوری امداد کے منتظر ہیں۔ بچوں کی بہبود کے عالمی ادارے UNICEF نے کہا سیلاب میں پھنسے بچوں کو بھوک کے ساتھ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، ملیریا اور ڈینگی کے ساتھ پیٹ کے امراض ان پر حملہ آور ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں اس موسمیاتی تباہی کی قیمت چکا رہے ہیں جس میں وہ حصے دار ہی نہیں۔ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی مائیں غذائی قلت کا شکار ہو کر دودھ پلانے سے بھی قاصر ہیں۔ سیلاب تو سب کچھ بہا لے گیا، آپریشن کے لیے 40-50 ہزار روپے کہاں سے لائیں؟ سیلاب زدہ راجن پور میں حاملہ خاتون علاج کے لیے پریشان، ڈاکٹرز نے 5 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی۔ آپریشن نہ ہونے کی صورت میں خاتون اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ شوہر پھٹا گاڑی چلاتا ہے، کبھی کبھار 500 سے 600 دہاڑی لگاتا ہے، کھانے کو پیسے نہیں، آپریشن کے پیسے کہاں سے جمع کریں؟ متاثرہ خاندان کی دہائی۔ سیلاب میں ڈوبے قنبر شداد کوٹ سے لے کر خیرپور ناتھن شاہ کے علاقوں کے لوگ پانی میں کمی کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے لگے، لیکن مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
कई लोग बीमारियों में मुब्तला तो कई भूखे पेट, कई इलाकों में पीने का पानी गायब तो कहीं राशन नहीं, शहरों में डॉक्टर्स नहीं, इलाज भी मुश्किल हो गया। जो ही शहर में 6 रोज से बिजली बंदिश से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला, चारों तरफ पानी के बायस हब्स बढ़ गया। बच्चे, बूढ़े, खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बदीन में LBOG स्पाइनल ड्रेन की RD 212 पर कट लगाने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 दिन से जारी कट लगाने के हामी और मुखालिफ ग्रुप्स का थरकोल रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज। बहुत ये सैलाब में नुकसान हुआ, जिससे हमारा चावल तकरीबन 20 एकड़ चावल की थी फसल वो तबाह हो गई। 20-25 मन हमारा गंदम तबाह हो गया। इतना मरे हो गया, इतना सैलाब मैंने नहीं देखा। अभी हमारा फसल गया, हमारा माल गया, हमारा सब कुछ गया। जो बच्चे हैं रोड पर पे, हम रोड के बूटे ऊपर बैठे हैं, हमारा बच्चे भूख के साथ लड़ते मरते हैं। इधर रोड पे बैठे भी ऐसे देख रहे हैं, जमीन सूख गई, अपने घर में जाए, पानी भी नहीं निकल रहा है इधर। बलोचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी कई फुट पानी मौजूद। पानी के जल्द निकास और दबाव कम करने के लिए खानपुर के मकाम पर 50-50 फुट के 3 कट लगा दिए गए। मुतासिरीन को सख्त गर्मी के साथ मलेरिया, डेंगू समेत वबाई अमराज ने घेर लिया। सैलाब से एक तरफ जहां लाखों एकड़ रकबे पर चावल, कपास समेत दीगर फसलें तबाह हो चुकी, वहीं ज़रई जमीनों से पानी की निकासी न होने से गंदम समेत दीगर फसलों की काश्त भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। मुतासिरीन अपने इलाकों से पानी निकलने और अपने घरों को जाने के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब से मुतासिरा छोटे बच्चों को खुराक की शदीद जरूरत है। करोड़ों अफराद इमदाद के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। मुतासरीन में BISP प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए दिए। BISP हुआ सिस्टम है, गैर मुल्की एजेंसी तस्लीम करती हैं। वफाक की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गैर मुल्की सुदूर ने पूछा कि सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद क्या इमदाद दरकार है। सिंध का पंजाब पर सैलाब ज़दगान का इमदादी सामान रोकने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान पंजाब के ताजिरों से खरीदा था, वो सामान हुकूमत पंजाब ने रोक लिया। इमदादी सामान रोककर पंजाब हुकूमत क्या साबित करना चाहती है। सैलाब अपडेट देते हुए शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध में सैलाबी पानी की सतह कम हो रही है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका वहां के लोगों की वापसी का बंदोबस्त किया जा रहा है। हैदराबाद में बारिश और सैलाब से तबाह हुए घर सिंध हुकूमत बनाकर देगी। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों की चेहलम के मौके पर मुल्क भर में जुलूस, अज़ादार नोहाखानी और सलाम पेश करते रहे। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह पहुंचकर खत्म हुआ। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस निकाले गए। मजालिस में इमाम आली मकाम की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। जुलूस की गुजरगाहों पर सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चारसदा में PTI चेयरमैन इमरान खान की आमद पर सैलाब मुतासिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान को चारसदा याद आया है। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा PTI चारसदा के अवाम की इतनी हमदर्द है तो सैलाब ज़दगान के पुरअमन एहतजाज पर लाठी चार्ज क्यों कराया। चारसदा के अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। तकरीर सुनने के लिए किराए पर बंदे लाए गए। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। ऐसा वाकया हुआ कि एहतसाब का इदारा फौत हो गया। तहरीक इंसाफ के बाबर आवान की दुहाइयां। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मौलवी साहब के खिलाफ इंक्वायरीज खत्म कर दी गयी। सदर आरिफ अलवी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने एहतसाब का जनाजा रोके रखा। 2400 अरब रुपए लूटने वालों को माफ कर दिया गया। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा तहरीक इंसाफ वाले हमें कहते हैं अपने केसेस बंद करवाने आए हैं, अब पंजाब हुकूमत इनके केसेस बंद कर रही है। काम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फैसला
पाकिस्तान के अवाम ने करना है। किसी इंटरिम गवर्नमेंट की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है और इसको सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा। और मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन अगर इस सूरत हाल खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं। अवाम एक तरफ और हुकूमत दूसरी तरफ है। ये नहीं हो सकता कि अवाम जिसे मुंतखब करें उसे हुकूमत का हक हासिल ना हो। किसी भी दौर अपने बुनियादी कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है। किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही मुल्क के मफाद में है। सितंबर में ही कारकुनान हतमी कॉल का इंतजार करें। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते मगर उसकी शक्ल का सबको पता है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर अपनी तरबियत की अफसोसनाक तारीख का सबूत देते हुए एक लाग़व और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है कि उन्हें कोई क्रिकेट ग्राउंड दिया गया है। न ऐसा कुछ हुआ, न उनकी दिलचस्पी है और न उनका ऐसे मामलात से वास्ता है। इससे पहले पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया था कि खिदमात के एवज इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड मुख्तलिफ सहाफियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरबांट का शिकार है। फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई। अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया हमारी मदद के लिए तैयार है। रूस ने गंदम देने की पेशकश की है। कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गंदम की जरूरत हो सकती है। रूस से तेल और गैस लेने की बात भी हुई है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान को गैस और तेल देने की दावत दी थी। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे तो महंगाई में भी कमी होगी। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2022 का मुसव्वदा तैयार कर लिया, जल्द पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। मनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर कम अज कम सजा 2 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद रखने की तजवीज पेश की गई है। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा है। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत के नए वेरिएंट की तरदीदी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। महकमा सेहत ने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर डेंगू वार्ड बनाने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, खैबर, मर्दान, नौशेरा और हरीपुर डेंगू के लिए हसास करार। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर में डेंगू के सबसे ज्यादा 153 नए केसेस रिपोर्ट। मर्दान में 73 नए केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 188 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 80, लाहौर में 62 नए केसेस सामने आए। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मौजूदा सूरत हाल के बायस सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। पंजाब में गंदम की कीमत में इजाफे के बायस आटा महंगा हो गया। लाहौर में आटे की कीमत में इजाफा न रुक सका। 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1550 से 1600 रुपए हो गई। लाहौर में 10 और 20 किलो के सरकारी आटे की किल्लत बरकरार। गुजरावाला में 15 किलो आटे का बैग 1500 और चक्की का आटा 110 से 120 रुपए किलो में फरोख्त। लकी मरवत में सस्ते आटे के हुसूल के लिए खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। सस्ते आटे के ट्रक के पीछे मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग गई।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نفیسہ شاہ، آغا سراج درانی، منظور وسان کے بعد وفاقی وزیر خورشید شاہ کو سیلاب زدگان نے گھیر لیا. کہا نہ مچھردانیاں ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان، مویشی مر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بیٹھے لوگ سارا مال کھا گئے. سیلاب متاثرین نے خورشید شاہ سے کہا آپ صرف ووٹ لینے آتے ہیں، ہمارے گھر ڈوب گئے، سامان تباہ ہو گیا لیکن امداد نہیں ملی. وفاقی وزیر آبی وسائل گاؤں والوں کو نظر انداز کر کے چلے گئے. T20 سیریز سے قبل پاکستان اور انگلینڈ کی ایک ساتھ پریکٹس. دونوں ٹیمز کے پلیئرز ایک ساتھ نیشنل اسٹیڈیم میں نیٹس پر بھرپور مشقیں کی. آج ہی ٹیم کو جوائن کرنے والے محمد رضوان پریکٹس سیشن میں شریک نہیں. بولنگ کوچ شان ٹیٹ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ٹریننگ میں نہیں آئے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 میچز کی سیریز 20 ستمبر سے شروع ہوگی. اور ساکر ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر ختم. آخری گروپ میچ میں پاکستان کو آئرلینڈ کے خلاف 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست. پاکستان ساکر ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 سے باہر. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.